So class, the next answer is the content of audit working papers. Now, first, see, whenever if someone is asking you that write down the contents of the audit working papers, even if you get this answer in the exam, first always write the meaning of the audit working papers. पहले हमेशा एक meaning लिखो उसका, ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट विद द कंटेंट्स. तो हमेशा जैसे भी कभी कोई ऐसा आंसर आया तो पहले क्या करोगे, पहले मीनिंग लिखोगे दैट वर्किंग पेपर्स आर नथिंग बट दे आर द रिटर्न रिकॉर्ड्स which has been prepared and which has been obtained by the auditor during the course of an audit, and this is a link between the books of accounts and the auditor's report. और ये किसकी प्रॉपर्टी है? So working papers are the property of the auditor. So this first you write it down in the meaning and then you start with the content. Now class, working papers are divided into the, for our convenience, that is for the auditor's convenient, he used to divide this audit working papers into the two file. The first one is a permanent file and another one is a current file. Okay, so first write down the name, permanent file. Now, what is a permanent file? So class, permanent file contains all the papers of continuing importance. Then it gives the information about the, say कि constitution क्या है organization का, what all are the policies which are been adopted by the management, how the internal control system is there. And देखो, you must have learned in the management accounting about the ratio analysis. तो अगर कोई बिजनेस ने रेशियो एनालिसिस किया है, अगर ट्रेंड्स निकाले, अगर कोई अर्लियर ईयर्स के, तो अर्लियर ईयर्स का तो सेम होगा, आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हो क्या? नो, यू कैन नॉट डू एनी ऑफ द मॉडिफिकेशन. So that can be placed in the permanent file. Then जो भी मेमोरेंडम ऑफ दिस मेमोरेंडम होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होंगे, अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनरशिप डीड होगी, या तो फिर अगर वो ट्रस्ट है तो ट्रस्ट की डीड होगी. ऑल दिस आर द परमानेंट पेपर्स, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज एवरी ईयर, इसमें कोई चेंजेस नहीं आना है. सो दैट कैन बी ऑलवेज केप्ट इन द परमानेंट फाइल. ओके, फिर देखो, जैसे जैसे एवरी ईयर ऑडिटर विल बी गिविंग हिट्स ऑडिट रिपोर्ट, तो जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट्स ऑब्टेन हो गए तो उसमें अभी आप मॉडिफिकेशंस तो नहीं कर सकते हो, तो यू कैन, जो भी पास्ट ईयर्स के आपके ऑडिट वर्किंग पेपर्स होंगे, दैट आल्सो यू कैन प्लेस इन द परमानेंट ऑडिट फाइल. Then if suppose we have changed our auditor, as a client, if I have changed the auditor, previous year I was having another auditor and this time I have appointed a new auditor. तो अगर ऑडिटर ने कुछ कम्युनिकेशन किया है, मतलब इफ सपोज इफ मैं नई ऑडिटर हूं और मैंने मेरे प्रीवियस जो ऑडिट कर रहा था उसके साथ अगर मैंने जो भी कम्युनिकेशन किया है, तो वॉट एवर वुड दैट, इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है, वो ऑडिटर का जो भी रिप्लाई है, दैट कैन बी ऑल्सो केप्ट इन द परमानेंट फाइल. Okay, so apart from that, if there are any of the laws, or you can say rules or regulations which are applicable to the client, you can place that in the permanent audit file. So I'm just giving you right now the gist of the permanent audit file and the current audit file. Okay class, and the next one is current audit file. नाउ करंट ऑडिट फाइल में क्लास व्हाट विल बी द रिटर्न, अब तुम लोग ही बोलो, तुम लोग इससे परमानेंट और करंट पे ये कर सकते हो, यू ओनली टेल मी. सो अ करंट फाइल विल कंटेन ऑल द पेपर्स विच आर रेलिवेंट फॉर द करंट ईयर्स ऑडिट. जो भी सारे पेपर्स है जो रेलिवेंट है ये साल के ऑडिटिंग के लिए, ऑल दोज विल बी देयर इन द करंट ऑडिट फाइल. अब जैसे कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हो गया, ऑडिट प्लान एंड द ऑडिट प्रोग्राम विल बी डिफरेंट. देन दिस ईयर का कॉपीज ऑफ ऑल योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी देयर. फिर आपने ऑडिटिंग करते वक्त ये साल जो भी क्वेरीज रेज्ड की है, whatever would be the detailed response which you have received from the client, that also will be recorded in the current file. Then suppose if you have asked any of the question to your third party like daters हो गए, creditors हो गए, बैंक हो गए, उनसे आपने कुछ confirmation letters लिए, so those letter also will be placed in the current audit file. ठीक है. Then if certain meeting was been taken suppose, तो मीटिंग में आपने जो भी डिस्कस किया हम उसको बोलते हैं मिनट्स. तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग whatever would be there, that also can be kept in the current file. Then if the any calculation work is done, any working is been done, and if the audit assistant ने ये सारे workings करके उन्होंने कुछ answers लेके आए, so all those also will be recorded in your current audit file.
ओके, सो देन दिस ईयर, एज आई टोल्ड यू, दिस ईयर की तो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज होगी, ट्रायल बैलेंस की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, स्केड्यूल्स की, ग्रुपिंग्स की, वो सारी तो इसमें लगेगी ही लगेगी। ओके, एंड ऑडिट, ये साल का जो पर्टिकुलर ईयर का अगर ऑडिट रिपोर्ट होगा अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ के हाउ द ऑडिटर हैज ड्रॉन द कंक्लूजन, हाउ इट वाज बीन रीच, दैट आल्सो नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इनटू द करंट फाइल। सो इन शॉर्ट आई कैन डायरेक्टली से इट अप दैट करंट फाइल में, जिसमें आपको बार बार मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर आपने लेटर ऑब्टेन कर दिया तो भी एवरी ईयर वो सेम ही रहने वाला है। ऑल दोज कैन पेपर्स कैन बी प्लेस्ड इन द परमानेंट फाइल, वेर इज वेर यू नो के चेंजेस आर रिक्वायर जो करंट ईयर के रिलेटेड है, that you can write down in the, that you can, those papers can be placed in the current file. So like this you can write down the answer, कि मतलब पहले परमानेंट ऑडिट फाइल के बारे में उसका ब्रीफिंग लिखो, देन यू राइट अबाउट अ करंट ऑडिट फाइल, what all are the papers which you will be keeping in the permanent and what all are the papers which you will be keeping in the current, and then you get this answer, so you can write down that this all are the contents which are being kept in the permanent, and we have discussed each and every content right now। हमने ये सारे जितने भी कंटेंट्स थे वो सारे अभी डिस्कस किए कि कौन कौन से कंटेंट्स हम परमानेंट में डालेंगे एंड व्हाट आर द कंटेंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू कीप इन द दिस current audit file। Okay, so I'm just giving you 1 minute to just have this look, just have a look। As I told you कि जो भी डिस्कस किया होगा इन द मीटिंग, द रिकॉर्ड्स ऑल्सो नीड्स टू बी, यू नीड टू मिनिटाइज ऑल द रिकॉर्ड्स, अगर कुछ उसमें चेंजेस आए होंगे तो यू नीड टू राइट इट डाउन। Now class, over here one more thing is written, ये वाला last point, certificates or representations from the management regarding the closing stock, verification of fixed assets, value of the current assets and so on। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप कुछ वैल्यूएशन करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक का या तो कोई असेट्स का वैल्यूएशन करना है, तो वैल्यूएशन आप एज अ ऑडिटर आप नहीं करोगे, द क्लाइंट विल बी डूइंग दैट फॉर यू। आपको क्लाइंट करके देगा, एक्सपर्ट से वो करवा के देगा। तो यू नीड टू ऑब्टेन दैट सर्टिफिकेट फ्रॉम द मैनेजमेंट, एंड दैट सर्टिफिकेट इज ऑल्सो नोन एज अ लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए यहाँ पर ब्रैकेट में रिप्रेजेंटेशंस भी लिखे, बिकॉज दिस सर्टिफिकेट which you will be receiving from the management regarding the valuation part, so that is also known as a letter of representations, or you can even say it as a management representation letter। ठीक है, the auditor will be obtaining this letter from the client because the auditor himself is not a valuer, वो वैल्यू नहीं करेगा, वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है। ओके okay? और देखो, इवन ही नीड्स टू कीप ऑल द रिकॉर्ड्स विच ही हैव। हमने ये जब स्टार्टिंग का ये चैप्टर स्टार्ट किया था, वी हैव सीन दैट विच ऑल आर द डॉक्यूमेंट्स विच विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द क्लाइंट। हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट्स के पास से ले सकते हैं। सो जो भी हमें क्लाइंट ने दिया होगा दिस ईयर के जितने भी इंफॉर्मेशन देगी, ऑल द पेपर्स कैन बी केप्ट इन योर करंट ऑडिट फाइल।